चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी डिस्कस करेंगे। वी विल हैव सम इंट्रोडक्शन ऑन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सबसे पहले पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के जानने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे कितनी टाइप की क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। ओके, सो एक्चुअली there are two type of cryptographic encryption methods are there, or you can classify the cryptographic mechanism into two categories. One is symmetric key cryptography. Symmetric key cryptography. Sometimes it is also called private key encryption system. Or you can say private key cryptography, and or it is also called sometimes conventional. Conventional cryptography or conventional encryption system. Conventional encryption mechanism. हम लोग इससे रिलेटेड कई सारी मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। मे बी आपको फॉर्मली इनका नाम नहीं पता हो। सो लेट मी फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट. So till then you have heard, you have studied the cryptographic mechanism with the following concept. There is a sender who want to send something to receiver secretly or securely. So you can call sender Alice. Here Bob is there, and Bob is supposed to receive the message that has that is going through this channel, that is a public channel. You can say that is a public channel, and Eve is there, who is attacker. Eve want to attack this channel. Attacker. Okay, now this is receiver. Okay, so in this case you have seen that sender want to send message M is the message, then sender have a key, secret key. So with the help of encryption algorithm E, it gives M and the key to this algorithm and generates the ciphertext C, and this ciphertext travels to the channel and reaches to Bob. So Bob receives C. Bob, what Bob does? Bob takes this C to gives this C to decryption algorithm, and it also gives this key K and receives message M as output. Okay, so you see that both parties are supposed to have the same secret key. ठीक है, अगर सेम सीक्रेट की नहीं होगी तो डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होगा. सो अटैकर इज नॉट एबल टू डिक्रिप्ट दिस सी बिकॉज इट डजेंट हैव के, एंड बोथ द पार्टीज हैव दिस के. So this kind of encryption system is known as symmetric key encryption system or private key encryption system, because both the parties have a private key, and sometimes secret key encryption it is also called. Okay, so mainly popular term is that symmetric key cryptography. So what is the meaning of symmetric here? Symmetric means both have the key, so both the parties have the key. That means they have the same capability. Whatever sender can generate, receiver can also generate. Okay, receiver is also able to generate that, because both parties have the same secret key. Both have
common secret key. So that's why this method is known as symmetric key crypto system, and sometimes private key cryptography or secret key encryption method or conventional encryption mechanism. Okay. Now this mechanism have some drawbacks. You have seen that AES, DES जो भी algorithms हमने discuss की, AES, DES, 3DES, and you can say that RC4, all these algorithms comes in under this category. They are all symmetric key encryption mechanism. Now this mechanism have some drawbacks. जैसा कि मैंने बताया कि both sender and receiver have the same capability. So one disadvantage is that if there is some trust deficit between Alice and Bob, अगर Alice और Bob trust नहीं करते एक दूसरे को, then their communication will be in trouble. कैसे? Suppose that Alice sends some message by encrypting. So suppose that Alice is committing some amount to Bob. So Alice ने किसी जॉब के लिए या किसी वर्क के लिए या बिजनेस प्रपोजल में it says that I will pay let's say $10,000 for some work, and Alice writes a message and encrypts this message and send it to Bob. Okay, now what Bob can do, Bob can change this message and writes Alice have claimed, or Alice has said that she will give me $1 lakh. ओके, अमाउंट चेंज कर लिया एंड ये मैसेज उसने जनरेट कर लिया. सो नाउ अगर अब क्या होगा, ओबियसली डिस्प्यूट होगा. एलिस ने जो है ना $10,000 का प्रॉमिस किया था एंड बॉब इज सेइंग दैट यू हैव प्रॉमिस्ड. बॉब ने मैसेज मॉडिफाई किया एंड बॉब सेज दैट यू हैव प्रॉमिस्ड मी $1 लाख. इसका उल्टा भी हो सकता है. दोनों ने एलिस ने प्रॉमिस किया था बॉब को $1 लाख का. जब बॉब ने मैसेज मांगा, बॉब ने कहा कि मुझे एलिस ने डिमांड किया, सॉरी एलिस ने जो है ना $10,000 का प्रॉमिस किया था, नहीं $1 लाख का, सॉरी. एंड जब पैसा लेने की बात आती है तो बॉब दिखाता है कि आपने $1 लाख का ये प्रॉमिस किया था, और एलिस क्या करती है, एक दूसरा मैसेज जनरेट करके उसे इनक्रिप्ट करके और उसका कॉपी सी रखती है. वो कहती है आई सेंड यू दिस सी, एंड बॉब सेज नहीं आपने ये सी डैश भेजा था, जिसमें एक एलिस कह रही है कि मैंने जो भेजा था आपको डॉक्यूमेंट उसमें $1 लाख था, सॉरी $10,000 था. बॉब कह रहा है कि आपने $1 लाख प्रॉमिस किया था. सो इसमें से दोनों में से कोई भी एक दूसरे को आसानी से चीट कर सकता है ना. और इस डिस्प्यूट में अगर दोनों लोग कोर्ट में जाएंगे तो ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सही बोल रहा है. हाँ, ये किसी का क्वेश्चन है? हैं? नहीं, ईव की वजह से नहीं. एक्चुअली क्या है कि बॉब डिनाई कर सकता है ना कि आपने जो मैसेज भेजा ये है. जैसे एलिस ने मैसेज भेजा, उसमें $1 लाख उसने कहा, सॉरी $10,000 उसने क्लेम किया कि मैं आपको $10,000 दूंगे. लेकिन बॉब ने क्या किया, ये मैसेज नहीं रखते हुए एक मैसेज बनाया, उसमें लिखा सेम मैसेज है, केवल अमाउंट चेंज कर लिया, और उस कहा कि आपने ये मैसेज भेजा था, और ये उसका सिफर टेक्स्ट भी बना लिया, और आपने कहा देखिए ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिला था, जिसमें अगर आप डिक्रिप्ट करेंगे तो वो मैसेज मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि आप $1 लाख है. दोनों ही कोई भी मैसेज बना सकते हैं, बिकॉज बोथ हैव द सेम कैपेबिलिटी, है ना. और उस मैसेज की वजह से एक दूसरे को वो कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, और जब वो मैटर कोर्ट में लेकर के जाएंगे तो कोई भी जो ना प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये एक्चुअली एलिस झूठ बोल रही है या बॉब झूठ बोल रहा है. ओके, दोनों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एंड एक कोई चीटिंग करने पर उतर आता है, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू से कि ये मैसेज, जैसे ये मैसेज अगर भेजा है तो एलिस ये भी कह सकती है कि नहीं मैंने तो आपको कोई क्लेम ही नहीं किया, आई डिडंट सेंड दैट मैसेज. बॉब ने अपनी तरफ से ही बना लिया है मैसेज, आई हैव नॉट सेंड दैट. सो ये प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही इस मैसेज को जनरेट कर सकते हैं कि दैट लेट्स से एलिस सेज दैट एलिस आई विल गिव यू $10,000. ठीक है, ये एल मैसेज बनाया और इसको इनक्रिप्ट करके सी बना दिया. ठीक है, ये एलिस ने साइन करके दिया, बॉब सॉरी जनरेट करके दिया, इनक्रिप्ट करके भेजा सी. लेकिन बॉब क्या कर सकता है कि नहीं आपने ये भेजा,
बॉब ने क्या किया, अपनी तरफ से एक नया मैसेज बनाया, इसी को डिक्रिप्ट करके मैसेज पता कर लिया, फिर उसमें कुछ चेंज कर लिया और लिखा आई विल गिव यू $1 लाख, है ना। और इससे उसने इनक्रिप्ट करके एक मैसेज बना लिया जैसे सीड है। अब बॉब कैन क्लेम कि आपने ये वाला मैसेज भेजा था, ना कि ये, या एक्चुअली ये भेजा था। एलिस बाद में कहता है कि नहीं मैंने तो ये भेजा था, ये भेजा ही नहीं है। दोनों में से कोई भी डिनाई कर सकता है, और डिनाई करने पर कोई भी इट विल बी इम्पॉसिबल टू प्रूव कि ये मैसेज एक्चुअली एलिस कहेगा कि नहीं ये बॉब ने भेजा है, बॉब ने खुद ही जनरेट कर लिया है, और बॉब कहेगा एलिस ने भेजा है। और इसे मैं कोई साबित करने के लिए वी डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म, क्योंकि दोनों ही इन मैसेजेस को जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम कैपेबिलिटी है, दैट मीन्स सेम की है, बोथ हैव द की, सो एनीबडी कैन जनरेट दीज मैसेजेस। सो जो मैसेज एलिस जनरेट कर सकती है वही मैसेज बॉब भी जनरेट कर सकता है। यस और नो, है ना। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट मे अराइज। ओके, सो ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के साथ प्रॉब्लम है कि अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती हैं, या दोनों में से कोई भी मैलिशियस हो सकती है, देन इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज वन प्रॉब्लम। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, इसी से रिलेटेड है कि यू कैन नॉट यूज डिजिटल सिग्नेचर काइंड ऑफ थिंग। जैसे आप कोई भी, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर एलिस साइन करती, जैसे आप अगर रियल डाटा ऐप में देखें तो जब ये कम्युनिकेशन पेपर से होता तो एलिस एक लेटर हेड पर अपने टेक्स्ट लिखती कि मैं आपको $1,000 दे रही हूँ, देना है इस काम के लिए मुझे, सम टेक्स्ट के साथ, और नीचे अपना सिग्नेचर कर देती। तो फिर ये सिग्नेचर किया वो लेटर बॉब के पास होता तो एलिस मना नहीं कर पाती, क्योंकि एलिस के सिग्नेचर केवल एलिस कर सकती है, बॉब नहीं, है ना। सो रियल लाइफ में तो आप इसको सिग्नेचर वाले प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं, इस तरीके का सिग्नेचर टाइप ऑफ थिंग अचीव कर सकते हैं पर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में? सो इस दिस काइंड ऑफ थिंग इज नॉट पॉसिबल इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि दोनों ही लोगों के पास सेम कैपेबिलिटी है। अब मान लीजिए सब लोग सबके सिग्नेचर कर सकते थे, मान लीजिए समहाउ इमेजिन करिए दुनिया में ऐसा हो जाता है कि हर आदमी के सिग्नेचर हर आदमी कर सकता है। गुफरान के सिग्नेचर नासिर कर सकता है, नासिर के सिग्नेचर गुफरान कर सकता है, हर क्लास, आपकी पूरी क्लास किसी का भी सिग्नेचर कर सकती है, अपना और बाकी सबका भी। तो फिर सिग्नेचर से कोई फायदा होगा? है ना, सिग्नेचर विल नॉट वर्क नाउ। अभी क्या होता है, आपके सिग्नेचर जो कि कोई कॉपी नहीं कर सकता है, अज्यूमिंग दैट कि कोई कॉपी या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, हैंड राइटिंग का जो कॉपीइंग एक्सपर्ट है वो नहीं है, वो अज्यूम करके हम चलते हैं, तो आप देखेंगे कि नोबडी कैन कॉपी अदर्स सिग्नेचर्स। तो रियल लाइफ में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी में अगर हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज़ कर रहे हैं तो जो सेंडर कर सकता है वही कैपेबिलिटी रिसीवर में भी है। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम नॉन रेपुटेशन थिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और यू कैन से दैट डिजिटल सिग्नेचर काइंड ऑफ नॉन रेपुटेशन नहीं कर सकते, वी डू नॉट हैव एनी सिग्नेचर काइंड ऑफ थिंग, or you can say that this algorithm does not, symmetric cryptography does not support digital signature। ठीक है, नो डिजिटल सिग्नेचर। ओके, सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ सिमेट्रिक इनक्रिप्शन सिस्टम। सो आप जानते हैं ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। तो इनके लिए सॉल्यूशन निकालना, ये जो प्रॉब्लम मैंने पूरा सिनारियो डिस्कस किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके लिए आपको एक समाधान निकालना पड़ेगा। तो जो डिजिटल सिग्नेचर काइंड ऑफ, आपको मालूम है कि ये जो प्रॉब्लम है इस नहीं होती अगर डिजिटल सिग्नेचर जैसा कोई चीज़ हो जाती, जैसे आप सिग्नेचर करते हैं उसी का इक्विवेलेंट अगर रियल वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में आ जाता तो फिर कोई इशू नहीं होता, जैसे हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक है, हालांकि डिजिटल सिग्नेचर आपका जो पेपर पर साइन करते हैं वैसा कोई सिग्नेचर नहीं है, वी विल डिस्कस क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर। ओके, सो अभी डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये मत मान के चलिए कि जो हम वो वाला सिग्नेचर का हमने सिग्नेचर लिया, स्कैन कर लिया और वो वाला स्कैन की कॉपी हम किसी भी जगह चिपका दें, वो वाला डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, दैट इज़ नॉट द डिजिटल सिग्नेचर।
आपने अपनी सिग्नेचर की इमेज किसी डॉक्यूमेंट में लगा दी, दैट इज नॉट द डिजिटल सिग्नेचर. ओके, दैट सिग्नेचर इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. सो दिस इज द प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम और थी, दूसरी प्रॉब्लम है की डिस्ट्रीब्यूशन. की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम. नाउ अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पार्टीज है इनको की कौन प्रोवाइड करेगा. तो ऑब्वियसली हम यहाँ मान के चलते हैं कि बॉब और एलिस को एक थर्ड पार्टी ने, ट्रस्टेड जो पार्टी है जिन्हें एलिस और बॉब दोनों ट्रस्ट करते हैं, वो इनको की ऑफर करती है, की प्रोवाइड करती है. ओके, सो नाउ अज्यूम करिए कि आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट, एक नेटवर्क है उसको सिक्योर करना चाहते हैं. आपके नेटवर्क में बहुत सारे यूजर्स हैं. सो यू हैव ए network infrastructure, okay, where you have n number of users, और आप इनके बीच में कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कराना चाहते हैं इन्हें यूजिंग एनी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम. ओके, सो जब आप मान लीजिए सबको AES की देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये यूजर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, n यूजर्स हैं और सबको AES की देना है आपको. ठीक है, n यूजर्स आर देयर and you need to give them AES की, सीक्रेट की. दैट मीन्स AES एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं ये लोग और सबको आपको सीक्रेट की देनी है. तो कितनी सीक्रेट की आपको बांटना पड़ेंगे. देखिए, अब आपके चूंकि सिस्टम में कितने यूजर्स हैं, n यूजर्स हैं, है ना. तो n में से एक यूजर को ले लीजिए, लेट्स से U1 एक यूजर है. ठीक है, अब U1 को बाकी सब यूजर से कम्युनिकेट करना है, U2 से भी कम्युनिकेट करना है, U3 से भी कम्युनिकेट करना है और U4 से भी कम्युनिकेट करना है. तो U1 को एक की इन दोनों के बीच, मतलब U1 को एक की U2 के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए चाहिए, लेट्स से के U1 U2. इन दोनों के बीच में एक की चाहिए, इन दोनों को की देना पड़ेगी जो दोनों कम्युनिकेट कर पाए, के U1 U3 एंड के U1 U4. सो एक यूजर आपके सिस्टम में, मान लीजिए टोटल यही 4 यूजर हैं, तो U1 को आपको कितनी की देना पड़ रही है, 1 2 3, है ना. सिमिलरली ऑल यूजर्स विल ऑल्सो रिक्वायर्ड 3 कीज. U2 को भी 3 की चाहिए होंगी, एक U1 से कम्युनिकेट करने के लिए, एक U3 से कम्युनिकेट करने के लिए, एक U4 से कम्युनिकेट करने के लिए. दैट मीन्स हर यूजर को आपको, ईच यूजर नीड टू बी गिवन n-1 कीज. ईच यूजर गिवन n-1 कीज. टोटल यूजर कितने हैं, n यूजर्स हैं, तो टोटल कीज कितनी आपको बना करके देना पड़ेंगे. टोटल कीज दैट नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among n यूजर्स आर. एक यूजर के लिए n-1 की है, तो n यूजर्स के लिए n इंटू n-1. आप चाहें तो इसे मैस ग्राफ के तौर पर भी दिखा सकते हैं. तो मैस ग्राफ में जितनी एजेस हैं, जितनी एजेस होंगी उतनी ही जो है ना, जैसे 4 यूजर्स हैं तो 4 यूजर्स का मैस ग्राफ बना लीजिए. एक ये हो गया U1 U2 U3 U4. मैस ग्राफ आप सब लोग जानते होंगे. ठीक है, सो मैस ग्राफ का ही फॉर्मूला है. एक मिनट, इसमें हाफ और करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि जब आप U1 को एक U3 के लिए की असाइन कर रहे हैं, तो U3 और U1 के बीच एक कॉमन की है, दोनों लोग सेम की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो जो लिंक्स हैं वो हाफ हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि दो लोगों के बीच कॉमन की है, सबको सेपरेट नहीं देना है, तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा. U1 और U2 हैव सेम की,
सो जब आप U1 को की दे रहे हैं तो U2 को भी मिल जाएगी ना अपने आप U1 के लिए, तो इसलिए टोटल जो कीज हैं वो हाफ हो जाएंगे। और इसे आप काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं जो मैथ ग्राफ में जो एजेस हैं उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे U1 के लिए ये 3 की हो गई, U1 U2 U3। तो जब U1 को की दी तो अपने आप U2 को भी एक की मिल गई है U1 के लिए, और U3 को भी मिल गई, और U4 को भी मिल गई। एंड एक की U4 और U2 के लिए हो गई। तो U4 के लिए आप देखेंगे ये एक एज एक की को रिप्रेजेंट करती है। तो U4 U1 के बीच की हो गई ऑलरेडी, U1 U3 के बीच की है ही है ऑलरेडी। तो आप टोटल एजेस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें जो एजेस होती हैं वो होती हैं n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। सो n का मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस, तो n 4 है, n 3 डिवाइडेड बाई टू 6। ठीक है। जितनी एजेस आती हैं वही उतनी की आपको चाहिए। तो सेम इसी से मैंने ये फार्मूला डराइव किया है। तो इतनी की आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेंगी। सो दैट मीन्स अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो ये क्या हुआ, n इंटू एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है Tn, ये कैसी है, एन स्क्वायर रेंज की है, एन स्क्वायर टाइप की है, क्वाड्रेटिक है। ये जो प्रॉब्लम है की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, इट इज क्वाड्रेटिक इन नेचर, QUADRA, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। ओके। सो जो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं एफिशिएंसी के टर्म में, जो ये स्लो होती हैं। ठीक है। नाउ ये प्रॉब्लम हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की प्रॉब्लम को हैंडल करना है। इसके साथ साथ कई बार आपको मालूम है कि ये कीज एक बार असाइनमेंट के बाद परमानेंटली असाइन नहीं हो जाती हैं। आफ्टर सम टाइम यू नीड टू चेंज द की, क्योंकि एक ही की से आप लॉन्ग टाइम तक इंक्रिप्शन करते रहेंगे तो क्या होगा, अटैकर के सामने सफिशिएंट सिफर टेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा, एंड देन जो लार्ज अमाउंट ऑफ सिफर टेक्स्ट अवेलेबल होने की वजह से आपके इंक्रिप्शन सिस्टम को ब्रेक किया जा सकता है। तो हम अटैकर को लार्ज अमाउंट ऑफ सिफर टेक्स्ट भी नहीं देना चाहते हैं एक ही की से। एंड कई बार क्या होता है कि यूज़र की किसी वजह से सीक्रेट रखना होती है आपको की, लेकिन वो समहाउ किसी और को डिस्क्लोज हो गई, आपने सीक्रेट की ठीक से सीक्रेट नहीं रख पाई, तो आपको की बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। और यू लॉस्ट योर की, यू फॉरगॉट योर की, तब आपको की बदलना पड़ेगी। तो ये जो की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है दैट इज क्वाड्रेटिक इन नेचर। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को कई एप्लीकेशंस में यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। So that's why people were looking for an alternative. So that alternative is provided by public key cryptography. So first let me define what is public key cryptography. So public key cryptography में what we assume कि each user having a pair of key, each user has a pair of keys. ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, अपने मर्जी से खुद रैंडमली दो की जनरेट करेगा, जिसमें से दो की में से एक की को वो पब्लिकली अनाउंस कर देगा, सबको बता देगा, और यू कैन से दैट एक पब्लिक डायरेक्टरी है वहाँ पर आपने रख दी। ओके। सो एक की हो गई PU, लेट्स से दिस यूजर इज A, तो यूजर के नाम के हिसाब से हम कर लेते हैं PUA। सो दिस बिकम्स पब्लिक की। सो यूजर के पास दो की हैं, PUA और PRB, सॉरी PRA ही लिखेंगे इसे, PRA। ओके। सो इन दोनों में से यूजर ने मान लीजिए इस की को पब्लिक कर दिया, तो हमने इसका नाम पब्लिक की रख दिया। सो दिस बिकम्स द पब्लिक की ऑफ A। हालांकि जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है उसमें जो की पेयर जनरेट करते हैं आप, उसमें ये फैसिलिटी खासियत है कि आप कोई सी भी एक की को पब्लिक कर दीजिए, एक को अपने पास सीक्रेट फॉर्म में रखिए। तो जो पब्लिक की जो की आपने पब्लिक कर दी वो उसे हम पब्लिक की बोलने लग जाते हैं, और जैसे आपने हाइड करके रखा वो आपकी हो जाएगी सीक्रेट की या प्राइवेट की। Okay, so in this case, in this kind of cryptography, each user have a pair of key, public key and private key. ठीक है। सो चूंकि पब्लिक एक की को आपने पब्लिक कर लिया है, इसलिए हम इसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं।
ओके, नाउ इसमें एक प्रॉपर्टी होना चाहिए जब भी आप एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म बनाएंगे, तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट नीड शुड बी होल्ड, दैट इज पब्लिक की से प्राइवेट की डिराइवेबल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी इन इट शुड बी इनफीजिबल। आई एम यूजिंग द टर्म इनफीजिबल। इनफीजिबल का मतलब इम्पॉसिबल नहीं लिख रहा हूं मैं, इनफीजिबल लिख रहा हूं। सो इनफीजिबल का मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, कंप्यूटेशनली कोई एल्गोरिथम ना हो, इनफीजिबल टू डिराइव पी यू ए सॉरी पी यू सॉरी पी आर ए फ्रॉम पी यू ए। सो आपको किसी यूजर के लिए ये की पता है तो इस की से आप ये की ना कंप्यूट कर पाए, इट शुड बी इनफिजिबल। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, यू कैन से दैट दिस इज द कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट और और नेसेसरी कंडीशन फॉर ए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। ठीक है, सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में क्या है समझ गए आप, हर यूजर जो भी सिस्टम्स में होंगे सबके पास एक पेयर ऑफ की है, पी आर ए, पी आर बी और सॉरी पी यू ए और पी आर ए। ठीक है, और इसमें से एक एक को आप एक को पब्लिक कर देंगे, एक को प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेट रखेंगे। सो इस तरीके से अब हर यूजर के पास एक पेयर ऑफ की की ऑफ पेयर होगा। नाउ लेट्स सी एलिस और बॉब अब इसमें कैसे कम्युनिकेट करेंगे। सो एलिस इज देयर एंड बॉब इज देयर। ठीक है, एलिस के पास है पी यू ए एल आई सी, या ए लिख लेते हैं। ठीक है, ए के लिए एलिस लिख लेते हैं, एलिस के लिए ए लिख लेता हूं मैं, पी यू ए और पी आर ए। ये एलिस का की पेयर है। बॉब के में, बॉब के पास है पी यू बी एंड पी आर बी। ओके, अब मान लीजिए एलिस बॉब को मैसेज भेजना चाहता है। ये कैसे काम करेंगे, अभी मैं कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली सिस्टम कैसे काम करता है एक हम आर एस ए का एग्जाम्पल लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन हम बाद में डिटेल्स में आएंगे या एक्चुअल मैकेनिज्म पर आएंगे। सो नाउ ये जो चैनल है दैट इज अनसेफ चैनल एंड ईव इज देयर। ईव के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, एलिस की पब्लिक की है ईव के पास, एलिस नोज पी यू ए एंड एलिस नोज पी यू बी। ओके, एलिस बॉब की पब्लिक की के बारे में भी जानती है और बॉब एलिस की पब्लिक की के बारे में जानता है। क्यों? क्योंकि ये हमने एक पब्लिक डायरेक्टरी जो है वहां रख रखी है। नाउ अब एलिस को बॉब को कोई मैसेज भेजना है तो एलिस क्या करेगी, इसमें इंक्रिप्शन कैसे होगा। सो नाउ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है कुछ ऐसे काम करेगी। सो लेट्स से ई इज द पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को आप इनपुट देंगे मैसेज, और नाउ एलिस बॉब को मैसेज भेजना चाह रही है तो एलिस जब बॉब को मैसेज भेजेगी तो एलिस क्या करेगी, बॉब की पब्लिक की इस्तेमाल करेगी, और बॉब की पब्लिक की पब्लिक है, सो सबको पता है, एलिस को भी पता है, ईव को भी पता है। सो इंक्रिप्शन के टाइम पर अब आपको जब मैसेज बॉब को भेजना है तो आपने बॉब की पब्लिक की यूज करती, और लेट से इससे आउटपुट आया सी, और सी आपने बॉब को सेंड कर दिया। ओके, जब बॉब को सी मिलेगा तो बॉब क्या करेगा, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम इस्तेमाल करेगा। और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट खासियत होती है, एक मेन खासियत होती है पब्लिक की एल्गोरिथम्स की, कि अगर आपने किसी की पब्लिक की से मैसेज इनक्रिप्ट किया है तो डिक्रिप्शन उस पब्लिक की के करस्पॉन्डिंग जो सीक्रेट की है उसी से होता है और किसी से नहीं होगा। ओके, सो चूंकि ये जो मैसेज सी है ये डिक्रिप्ट बॉब की पब्लिक की से किया गया है, तो इसमें इन डिक्रिप्शन में आपको बॉब की सीक्रेट की लगेगी। ओके, सो आपको सी पास करना है और सीक्रेट की ऑफ बॉब है PRP, ये लगेगी और आपको मैसेज मिल जाएगा। सो अब आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर एलिस ने एक मैसेज इनक्रिप्ट किया है बॉब की पब्लिक की से और नेटवर्क पर डाल दिया, ठीक है, नेटवर्क पर ट्रांसमिट कर दिया। नाउ ये जो मैसेज सी है इसका डिक्रिप्शन एलिस खुद भी नहीं कर सकती है, ध्यान रखना। एलिस इस सी से एम रिकवर नहीं कर सकती, हालांकि एलिस को पता है कि यह सी के करस्पॉन्डिंग मैसेज एम है, बट एलिस कैन नॉट डू डिक्रिप्शन।
अगर एलिस को कई सारे मैसेज जो बॉब को भेजे गए थे, एलिस ने कई से टाइम पहले बॉब को भेजे थे, बॉब सारे मैसेज एलिस के सामने रख दे, तो एलिस नहीं डिक्रिप्ट करके पता कर पाएगी कि ये कौन से मैसेज का डिक्रिप्शन था या ये इनक्रिप्शन किस मैसेज का है। सॉरी। ओके, सो दैट मीन्स डिक्रिप्शन की कैपेबिलिटी केवल और केवल किसके पास है? बॉब के पास। क्यों? क्योंकि पीआरबी बॉब के पास है, और डिक्रिप्शन जब पीयूबी से किया है तो पीआरबी से ही डिक्रिप्शन होगा। इनक्रिप्शन जब पीयूबी से किया है तो डिक्रिप्शन पीआरबी से होगा, और पीआरबी आपको मालूम है कि किसी बॉब के अलावा किसी को नहीं पता है। दैट मीन्स सी से एम को रिकवर करने का काम केवल और केवल पूरी दुनिया में बॉब कर पाएगा। nobody will be able to do that. Okay, so that means जब बॉब की यहाँ पर याद रखना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर किसी की पब्लिक की से मैसेज इनक्रिप्ट किया गया है तो उसे डिक्रिप्शन के लिए, उसे डिक्रिप्ट करने के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की ही लगेगी, और चूंकि वो प्राइवेट की सीक्रेट है, सो जिस पर्सन की वो पब्लिक की है वही जो है ना उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा और कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। ओके, सो इस केस में सी को केवल बॉब डिक्रिप्ट कर सकता है, ना तो ईव डिक्रिप्ट कर सकता है ना एलिस कर सकती है। एलिस क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके पास पीआरपी नहीं है। ईव भी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पीआरबी नहीं है, क्योंकि पीआरबी अकेले बॉब के पास है। तो ना अब बॉब की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि उसे अपनी सीक्रेट की जो पीआरबी है, प्राइवेट की जिसे हम बोलते हैं, ये प्राइवेट की को हाइड करके रखना है, ठीक है, किसी और को नहीं बताना है। तो फिर बॉब के लिए जो मैसेज आया है उसे कोई और जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है, उसे कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या ये जो दो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी वो यहाँ अराइज होती हैं कि नहीं होती हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मेथड है, इसमें अगर एलिस ने मान लीजिए एक मैसेज बनाया और उसमें लिखा अच्छा, अभी नॉन रेपुटेशन पर इसमें आते हैं, इसमें एक और मैकेनिज्म है उसकी बात करेंगे हम। सो चलो डिस्कस करते हैं। ये जो प्रॉब्लम थी ना, जो ये जो ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम हो रही थी, वो यहाँ नहीं होगी। यहाँ कैसे क्या कर सकते हैं आप कि एलिस को जब कोई कमिटमेंट करना है बॉब को, लेट्स से एलिस जो ना कमिटमेंट करना चाहती है कि एक जॉब के लिए मैं आपको, एलिस सेज दैट कि आई विल गिव यू द $10,000 फॉर ए जॉब। तो उसने एक मैसेज बनाया, मैसेज में लिखा है कि मैसेज में सी इज क्लेमिंग दैट, मैसेज एम जो है ना यही बता रहा है, मैसेज एम में यही टेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर काम के लिए फलाने डेट तक मैं आपको $10,000 पे करूँगी, और इसको वो बॉब को देना चाह रही है। तो इसको बॉब को वो कैसे देगी सो दैट एलिस बाद में डिनाई ना कर पाए, ठीक है। तो इस केस में क्या काम करते हैं हम कि जब एलिस है तो एलिस के पास अपनी प्राइवेट की है, तो इस मैसेज को एलिस जब सेंड करेगी तो लेट मी से दैट एलिस इज हियर। सो एलिस इस मैसेज को अपनी मशीन से इनक्रिप्ट कर रही है। तो उस केस में जो एल्गोरिथम होगी इनक्रिप्शन की एलिस साइड पर, उसमें आपने ये मैसेज दे दिया, लेकिन अब यहाँ पर आप पब्लिक की नहीं देंगे, एलिस की प्राइवेट की इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो पी आर एलिस ए। अब एलिस क्या करेगी, ये जो मैसेज है $10,000 वाला जो है ना, इसे अपनी प्राइवेट की से, सीक्रेट की से इनक्रिप्ट कर देगी, और इससे जो मैसेज जनरेट होगा दैट विल बी सी। नाउ ये जो सी है बॉब को ट्रांसमिट किया जा सकता है। सो बॉब इज हियर एंड बॉब रिसीव्स दिस सी, और बॉब इस सी को सेव करके रख सकता है और चाहे तो डिक्रिप्ट भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये मैसेज जो है ना प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया गया है, तो ये मैसेज का डिक्रिप्शन सीक्रेट की से होगा। किसकी सीक्रेट की से? एलिस की सीक्रेट की से। सो बॉब क्या कर सकता है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम को, सॉरी एलिस की पब्लिक की से, उल्टा बोल गया मैं, प्राइवेट की से इनक्रिप्शन हुआ है तो अब डिक्रिप्शन पब्लिक की से होगा, ठीक है। सो सी उसने पास किया बॉब ने, और एलिस की पब्लिक की PUA, और इससे एम मिल जाएगा। ओके, सो नाउ अब कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा, क्योंकि ये जो सी है, ये जो सी है, इसे केवल और केवल कौन जनरेट कर सकता है? ओनली एलिस कैन जनरेट दिस सी, ओनली एलिस कैन जनरेट दिस की सी, कैन जनरेट इट। क्यों जनरेट कर सकती है इस मैसेज को? क्योंकि सीक्रेट की एलिस की इस्तेमाल हुई है।
ओनली क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एलिस की सीक्रेट की केवल एलिस के पास है। तो ये जो मैसेज सी है जिसमें ये कमिटमेंट है कि इस काम के लिए इतने डेट तक $10,000 पे करने हैं, तो ये केवल एलिस जनरेट कर सकती है। सो इट बिकम्स ए काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि इसे इस सी को और कोई जनरेट नहीं कर सकता एलिस के जैसे आप अपने सिग्नेचर को खुद ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है, हैं? प्रैक्टिकली मोस्ट प्रोबेबली यही होता है ना कि गुफरान के सिग्नेचर केवल गुफरान कर सकता है। तो किसी जगह पर गुफरान के सिग्नेचर है, इसका मतलब यही होता है कि ये गुफरान ने डॉक्यूमेंट लिखा है। सो मान लीजिए आपको एक लेटर पढ़ा मिलता है कहीं पर और उसमें कुछ लिखा हुआ था, या आपके मान लीजिए वीसी ऑफिस में एक लेटर जाता है, उस पर गुफरान के सिग्नेचर हैं, है ना। तो इसका मतलब यही होगा कि गुफरान ने ही लिखा है, हैंड राइटिंग है और गुफरान के सिग्नेचर है नीचे। दैट मीन्स दैट लेटर हैज़ बीन रिटन बाय गुफरान, किसी और ने नहीं लिखा होगा। यही तो अश्योर करते हो ना आप। सो सेम यहीं पे भी अपन हो रहा है कि जो सी है इसे एलिस ही जनरेट कर सकती है, क्योंकि एलिस की प्राइवेट की और किसी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन इसे वेरीफाई हर कोई कर सकता है। जिसको एलिस की पब्लिक की पता है वो इसे डिक्रिप्शन करके देख करके मैसेज निकाल सकता है और पढ़ सकता है। सो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, है ना। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, साइन केवल आप कर सकते हो, वेरीफाई कोई भी कर सकता है, हर कोई वेरीफाई कर सकता है। जो गुफरान, जो मान लीजिए गुफरान की बात हो रही है, तो गुफरान जो भी सिग्नेचर करेगा तो आप सब लोग वेरीफाई करके बता सकते हैं कि ये गुफरान का ही सिग्नेचर है ना। आप बता दोगे ये गुफरान की हैंड राइटिंग है और सिग्नेचर भी गुफरान का ही है, मतलब ये गुफरान ने लिखा है। तो सिमिलरली एक मैसेज जो है ना, अगर किसी की प्राइवेट की से जनरेट हुआ है तो आप कोई भी पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट करके देख सकता है, और अगर डिक्रिप्ट हो जाता है इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये केवल और केवल उस पर्टिकुलर पर्सन ने ही, जिसके पास ये पब्लिक की है, उसने ये मैसेज जनरेट किया है। ठीक है ना। जैसे आपको अगर कोई ईमेल आईडी से मेल आता है, मेरी ईमेल आईडी से मेल आता है, तो आप तुरंत सीधे अज्यूम करते हैं क्या कि ये मेल मैंने ही भेजा है। क्यों? क्योंकि मेरी मेल आईडी का एक्सेस, दैट मीन्स यूजर नेम पासवर्ड, किसी और के पास नहीं है ना। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब दोनों ये जो यूजर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी अलग अलग हो गई है। मतलब एलिस जो मैसेज जनरेट कर सकती है वो बॉब नहीं कर सकता है। जैसे ये जो सी है, बॉब कैन नॉट जनरेट दिस सी, है ना। क्यों? क्योंकि इस सी को जनरेट करने के लिए प्राइवेट की लग रही है एलिस की, बॉब के पास तो नहीं है एलिस की प्राइवेट की। सिमिलरली जो काम बॉब कर सकता है, दैट मीन्स अगर बॉब अपनी प्राइवेट की से कुछ जनरेट करेगा तो उसे एलिस जनरेट नहीं कर सकती, केवल वो वेरीफाई करके देख सकती है कि ये बॉब ने जनरेट किया है या नहीं किया है। और वेरिफिकेशन कैसे होगा? अगर वो पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो गया, दैट मीन्स बॉब की पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो गया, इसका मतलब वो मैसेज बॉब ने जनरेट किया है। तो अब इस केस में इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो जिसकी पब्लिक की से मैसेज प्रॉपरली डिक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब ये उसी ने भेजा हुआ है। तो अब यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट अगर राइज होगा तो थर्ड पार्टी आराम से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है, कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो दोनों पार्टी हैं ये कैसी हैं? असिमेट्रिक हैं। पावर में, पावर के टर्म में असिमेट्रिक हैं। क्यों असिमेट्रिक हैं? सिमेट्रिक का मतलब होता है जो एक जैसी हैं, असिमेट्रिक का मतलब अलग अलग हैं। तो जो काम एलिस कर सकती है वो बॉब नहीं कर सकता, जो मैसेजेस बॉब जनरेट कर सकता है वो एलिस जनरेट नहीं कर सकती। ओके, सो दैट्स वाई इस क्रिप्टो सिस्टम को हम असिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड असिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम। ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। तो इस सिस्टम पर जो भी इस कॉन्सेप्ट पर जो भी क्रिप्टो सिस्टम बेस्ड है, दे कैन बी कॉल्ड असिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम और पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक की पब्लिक की होती है, तो ये दो नाम इसमें है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस क्रिप्टो सिस्टम। सो ये जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है, सबसे पहले फॉर्मली जो है अगर पब्लिश करने की बात करें तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिफी एंड हेलमैन। डिफी हेलमैन इन 1976। ठीक है, सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो ना फर्स्ट टाइम जो ना पब्लिकली इंट्रोड्यूस की गई बाय दीज टू पर्सन्स। हालांकि इसमें जो क्रेडिट है
हेलमैन को दिया जाता है। डिफ़ी जो ना हेलमैन को इसका क्रेडिट देते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि हेलमैन ने इसे जब डिफ़ी और हेलमैन जब साथ काम कर रहे थे, इससे पहले इंडिपेंडेंटली भी जो ना इसको मतलब डेवलप किया था पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम के कॉन्सेप्ट को, और बट दे डिड नॉट पब्लिश इट। लेकिन उन्होंने हेलमैन जो है ना उन्होंने इसे पब्लिश नहीं किया था। अब एक्चुअली हेलमैन वाज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट फ्रॉम 1974। ये उस प्रोजेक्ट के आउटकम के तौर पर एक तरीके से कह सकते हैं ये इसका सिस्टम डेवलप हुआ था। लेकिन दिस इज़ नॉट द कंप्लीट स्टोरी। हेलमैन को क्रेडिट मिलता है 1974 में एक उन्होंने एक प्रोजेक्ट के अंदर में इसको डेवलप किया था। लेकिन जो बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स आए तो उसके हिसाब से बाद में एनएसए में एक्चुअली ये जो मैकेनिज्म है एनएसए पहले से जानता था। और एनएसए में एक एडमिरल थे, हिज नेम इज एडमिरल बॉबी इनमैन। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था एंड ये एनएसए में थे। सो आपको मालूम है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की। सो एनएसए में थे जब इन्होंने जो डीएस में भी इन्वॉल्व थी, आपको मालूम है। सो ये एनएसए में काम करते थे ये पर्सन। तो इन्होंने इस क्रिप्टो सिस्टम को डेवलप किया था। बट चूँकि एनएसए में जो भी काम होता है वो सीक्रेट रखते हैं, और ये अराउंड जो 1960 का जो दशक है उसके मिड में इसको डेवलप किया था, 1960 मिड 1960 में। ठीक है, मतलब काफ़ी पहले। ये 76 में आया है, 74 में हेलमैन ने डेवलप की थी, लेकिन उससे पहले ही 1960 के मिड में जो वो है दशक, उसके मिड में ही जो है ना इन्होंने डेवलप किया था। और साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ ब्रिटेन की जो एजेंसी है एक, वहाँ भी इसको 1970 में डेवलप कर लिया गया था। ब्रिटेन में भी इसी के इक्वलेंट एक एजेंसी है एनएसए के इक्वलेंट, उसमें एजेंसी का नाम है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योरिटी ग्रुप। जो एनएसए का काउंटर पार्ट है, ब्रिटिश काउंटर पार्ट है, उसमें जो है ना उन वहाँ पर भी ये डेवलप किया गया था, जिसमें एक क्लासिफाइड रिपोर्ट में जो है ना इसको सिस्टम को मेंशन किया गया था। नाम नहीं पता इसमें हु डेवलप दैट, बट क्लासिफाइड रिपोर्ट जो जेम्स एलिस की थी उसमें इसको जेम्स एलिस नाम के एक पर्सन थे, उनकी एक रिपोर्ट में ये मेंशन था, जेम्स एलिस। ठीक है, सो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। सो यू कैन से दैट अल्टीमेटली यू कैन गिव द क्रेडिट टू दिस मैन। हालांकि इन्होंने पब्लिश नहीं किया था, बट बाद में जब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई देन दे स्टार्टेड publishing it. They were telling that we have already known these mechanisms. Now this is one thing. So आपने देखा कि हम इनक्रिप्शन में इनक्रिप्शन कैसे करना है। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से इनक्रिप्शन जब करेंगे तो आप क्या करेंगे, किसी को भी मैसेज भेजना है तो उसकी पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट कर लीजिए, वो अपनी सीक्रेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है, सो नाउ अब आपके पास काम क्या हो गया है कि अगर आपको किसी को भी एक्स पार्टी को मैसेज भेजना है तो आप एक्स की पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करके एक्स को भेज दीजिए और वो डिक्रिप्ट कर लेगा। जैसे आप ईमेल भेजते हो ना किसी को, तो आप अपने ईमेल आईडी से भेज देते हो और सेंड में उसकी मेल आईडी डाल देते हो, तो जिसको मेल आईडी का एक्सेस है वो आप मान के चलते हो, उसे मैसेज मिल जाएगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ दैट थिंग। ओके, सो नाउ ये प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई कि जो ट्रस्ट डेफिसिट वो खत्म हो गया, क्योंकि अब डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल है एक तरीके से। दिस इज जो मैंने अभी डिस्कस किया था मैकेनिज्म, दिस इज ऑल्सो ए डिजिटल सिग्नेचर मैकेनिज्म, बट वी विल ऑल्सो स्टडी सेपरेट एल्गोरिथम फॉर डिजिटल सिग्नेचर, जो स्पेशली बिल्ट एल्गोरिथम है, डीएसए जिसको बोलते हैं, डीएसए डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। कोई क्वेश्चन अभी तक? सो नाउ पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग दैट कि चूँकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में आप इनक्रिप्शन भी कर सकते हैं, आपको डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद ये जो एक और प्रॉब्लम जो मैंने की डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम थी, वो उसको अगर हम यहाँ बात करें तो की डिस्ट्रीब्यूशन भी अब आसान प्रॉब्लम हो गई है यहाँ। लेट्स टॉक अबाउट द की डिस्ट्रीब्यूशन। की डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप मान लीजिए आप पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कर रहे हैं, एक आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें एन यूजर्स हैं। ओके, तो ये जो एन यूजर्स हैं इनको आपको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के यूज करते हुए
इनके बीच के कम्युनिकेशन को सिक्योर करना है। तो अब आप क्या करेंगे, हर यूजर को एक एक की पेयर देना होगा आपको। सो एवरी यूजर नीड टू बी गिवन ए की पेयर। ठीक है, कौन सा, एक पब्लिक की, मैं लिख देता हूँ पी यू मीन्स पब्लिक की, एक प्राइवेट की पी आर। सो हर यूजर के पास 2 की होंगी। तो एन यूजर्स हैं तो टोटल कितनी बनाना पड़ेंगी आपको, 2 इंटू एन। सो प्रॉब्लम का ऑर्डर क्या हो गया, 2 का कोई मतलब नहीं होता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो की डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन, मतलब लीनियर। और आपको मालूम है कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जो फंक्शन होते हैं उसकी अपेक्षा लीनियर ऑर्डर ऑफ एन वाला जो फंक्शन है दैट विल बी क्वाइट फास्टर। ठीक है, तो जो की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में लीनियर है, दैट मीन्स क्वाइट बेटर देन द की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ईजी है। और एक और बेनिफिट ये है कि आपको सीक्रेट की जनरेट करके नहीं देना है। यूजर खुद क्या कर सकता है, एक की पेयर जनरेट करेगा खुद का आपके सामने, मान लीजिए आपके निगरानी में एक अपना की पेयर जनरेट करेगा, एक की आपको दे देगा और आपसे कहेगा आप इसे पब्लिक की डायरेक्टरी में डाल दीजिए। सो की आपने एक पब्लिक डायरेक्टरी बना दी, और उसमें सारे की पेयर्स डाल दिए जो ट्रस्टेड डायरेक्टरी है। ध्यान रखना है, इसको आपको ट्रस्टेड बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि इसमें यहाँ भी मैनिपुलेशन लोग कर सकते हैं की के बारे में। सो पब्लिक डायरेक्टरी आपकी की बना दी और आपने जो अपनी पब्लिक की है उस डायरेक्टरी में डाल दी और सीक्रेट की अपने पास रख ली। तो अब आपकी सीक्रेट की भी किसी और के पास नहीं है, जो मतलब थर्ड पार्टी है वो आपकी सीक्रेट की भी नहीं जानती है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता था क्योंकि जो सीक्रेट की है आपकी वो दोनों पार्टी को देना है, ए और बी 2 पार्टी हैं, और जो आप सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहे हो तो थर्ड पार्टी को की जनरेट करना पड़ेगी, क्योंकि एक ही की है जो ए को भी मिलेगी और बी को भी मिलेगी। तो इस केस में आपकी जो की है ए और बी जो के इस्तेमाल करने वाले हैं वो थर्ड पार्टी को भी पता है, और अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आपकी सीक्रेसी खत्म। जनरली होना ये चाहिए था कि केवल 2 ही लोगों को पता होना चाहिए था, ये तीसरी पार्टी को नहीं पता चाहिए। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट हो, एक आप हैं और एक आपके मतलब एक मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है और आपके पास एक पब्लिक की है और एक आपका फ्रेंड या ये कहिए जो सपोर्टिंग बिजनेस मैन है या आपका पार्टनर कंपनी है। तो इन दोनों के पास अपनी अपनी की है, लेकिन इन दोनों की इस थर्ड पार्टी के पास भी है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये पार्टी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या मैलिशियस बन जाए तो फिर इन दोनों का कम्युनिकेशन ईजिली जो ना ब्रेक हो जाएगा। पब्लिक की में ये प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक की में आपकी की आप खुद जनरेट कर रहे हैं, की पेयर आप जनरेट कर रहे हैं और एक की आप थर्ड पार्टी जो है ट्रस्टेड उसको दे दीजिए, वो आपको इस डायरेक्टरी में जो इस डायरेक्टरी को मैनेज करती है वो आप इस आप पुटअप कर देगी। ठीक है, सो की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इज मोर बेटर एंड मोर मैनेजेबल इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। सो नाउ अगर आप देखेंगे इस डिस्कशन से तो यू विल हैव ए फीलिंग दैट कि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी इज़ नॉट गुड। इससे बेटर है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ही हम यूज करना शुरू कर दें, प्राइवेट की को हटा दें, क्योंकि उसमें 2 डेफिसिट्स हैं, है ना। सो ये ट्रू नहीं है। सो एक समटाइम्स पीपुल यूज टू थिंक कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो ना कुछ टाइम में सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी जो है या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी उसे ख़त्म कर देगी। तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स आर वेरी स्लो। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स आर वेरी स्लो क्यों, क्योंकि ये जो मेथड्स हैं ये ज़्यादातर जो नंबर थ्योरीज हैं, नंबर थ्योरी और इससे रिलेटेड थ्योरीज पर बेस्ड है। ओके, तो ये जो मेथड्स हैं इनमें आपको लार्ज नंबर्स के साथ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना पड़ता है, और उनमें जनरली इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऑपरेशन में फॉर एग्जांपल आरएसए की अगर ये बात करें, आरएसए एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है, और भी हैं हम आगे बात करेंगे। तो इसमें जो है ना हम लार्ज नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, इंटीजर्स के ऊपर। नंबर का मतलब यहाँ सीधा इंटीजर है, रियल नंबर की बात नहीं हो रही है।
तो इन नंबर्स में जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऑपरेशन है वो कई बार एक्सपोनेंशिएशन और इन्वर्स जो है ना वो कंप्यूटेशंस होती हैं, तो वो टाइम टेकिंग कंप्यूटेशंस होती हैं, काफ़ी टाइम लगता है उसमें। ठीक है, जबकि जो सिमेट्रिक के क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स हैं उनमें परम्यूटेशन डिफ्यूजन और ये सब मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं, तो वो मैकेनिज्म काफ़ी फास्ट होते हैं। तो दैट्स वाई पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स आर वेरी वेरी फास्ट इन कंपेरिजन टू सॉरी सिमेट्रिक की मैकेनिज्म आर वेरी फास्ट लाइक AES DES और ये सब जो एल्गोरिथम्स हैं दे आर वेरी वेरी फास्ट इन कंपेरिजन टू RSA और अदर सिमिलर एल्गोरिथम्स। ठीक है, अलगमल क्रिप्टो सिस्टम इज ऑल्सो देयर। पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम का एक और एग्जाम्पल है अलगमल क्रिप्टो सिस्टम, वी विल सी दैट लेटर। एंड इलेप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स भी हैं। सो ऑल पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स आर वेरी वेरी स्लो इन कंपेरिजन टू सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन सिस्टम लाइक DES AES। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट करेक्ट टू से कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ख़त्म हो जाएगी। फिर अब एक्चुअली होता क्या है, हम एक्चुअली क्या करते हैं, क्योंकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड स्लो है तो हम इसे नॉर्मल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जनरली हम क्या करते हैं, की एक्सचेंज जो आप देखेंगे, दो पार्टी जब कम्युनिकेट करती हैं तो वो एक सेशन में जाती हैं और सेशन के लिए एक सेशन की इस्तेमाल होती है। जब दो पार्टी A और B आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं या दो प्रोसेस कम्युनिकेट कर रही हैं तो इनके बीच एक सेशन इस्टेब्लिश होता है और इस पूरे सेशन को आप इनक्रिप्ट करते हो। ठीक है ना, तो ये सेशन सिक्योर आपको करना है, तो सिक्योर सेशन के लिए आपको सेशन की रिक्वायर्ड होती है। ओके, जिससे आप इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि हम सेशन की यूज करते हैं और फिर सेशन की यूज करने के बाद जो है सेशन की मदद से इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं और ये सेशन की DES या AES में यूज होती है। दैट मीन्स हम इनक्रिप्शन जो करेंगे वो AES DES से करेंगे, लेकिन सेशन को इनक्रिप्ट जब करने के लिए जो की लग रही है AES DES में, वो की हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की मदद से दोनों पार्टीज को एक्सचेंज कर दोनों पार्टी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सेशन के क्रिएशन के टाइम से ही पहले जब सेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, जब आप देखते हैं ना TCP कनेक्शन, और नाम ये सुना होगा आपने, TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है दो पार्टीज के बीच में, या UDP सेशन में वो एंटर कर रहे हैं, तो सेशन के इनिशिएशन से पहले दोनों के बीच में कई सारे पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं। तो वो पैरामीटर एक्सचेंज में एक काम और होता है, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी दोनों के बीच में एक सीक्रेट की जनरेट करके एक्सचेंज की जाती है। ठीक है, तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की मदद से हम सेशन की जनरेट करते हैं। ठीक है, सो जनरेशन ऑफ द सेशन की, जनरेशन एंड शेयरिंग, दोनों के बीच में एक दूसरे को दोनों को वो की प्रोवाइड करना, शेयरिंग ऑफ सेशन की इज डन विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ओके, और सेशन का इंक्रिप्शन, ठीक है, मैसेज इंक्रिप्शन, ड्यूरिंग द सेशन is done using a symmetric key algorithm। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अगर आप देखें तो जो कम्युनिकेशन है इसमें दोनों इस्तेमाल हो रही हैं। पब्लिक की का क्या रोल है, सेशन की को जनरेट करके एक्सचेंज करा देना। ओके, और जब सेशन की एक्सचेंज हो गई दोनों के बीच में, अब दोनों आपस में मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं और मैसेज का जो आदान प्रदान है वो किससे होगा, सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ सम सच काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स लाइक AES और DES। तो आप देख रहे हैं ये जो दोनों मेथड्स हैं एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, सो दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, क्योंकि की डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब काम में आप पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम इनएफिशिएंट है और दूसरा ट्रस्टेड, दोनों ट्रस्टेड एफिशिएंट होता है, उसे वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्राइवेट की से आप पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से इंक्रिप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्रिप्शन करेंगे ज़्यादा मैसेजेस का तो ये स्लो है, इसलिए
जब क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स आपको मालूम है कि किसी भी कम्युनिकेशन में एज ए प्री प्रोसेसिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मतलब कोई भी एक्चुअल टास्क होने से पहले हम इंक्रिप्शन और ये सब कर रहे होते हैं। तो अगर ये मेथड स्लो होंगे तो आपके कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस पैदा होगी, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि ये प्रोसेस ए जो है, मान लीजिए बी को कुछ डेटा भेज रही है, तो पहले इंक्रिप्शन करना पड़ेगा ना डेटा का, तब आप ट्रांसमिशन करेंगे। और ट्रांसमिशन में अपना टाइम लगता है, इंक्रिप्शन में अपना टाइम लगता है। तो ट्रांसमिशन की वजह से और ए की कुछ प्रोसेसिंग की वजह से रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। और उस मान लीजिए ऑलरेडी ये रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी है एंड उसमें हम इंक्रिप्शन का टाइम और ज़्यादा ऐड कर दें, तो हो सकता है कि फिर जो रिस्पॉन्स टाइम इतना हो जाए कि दोनों पार्टी फिर उस कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ करना ही नहीं चाहें। ओके, सो अगर अगर कोई आपसे पूछता है कि पब्लिक की क्रिप्टो, ये स्टेटमेंट कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी को रिमूव कर देगी पूरी तरह से, तो दैट स्टेटमेंट जो है ना, आपको कह देना है कि नहीं, ऐसा सब नहीं है। ओके, ये दोनों मेथड्स के अपने अपने लिमिटेशंस हैं और इसलिए दोनों एक साथ यूज होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कंप्लीट करते हैं दोनों एक दूसरे को। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। सो आपको मैं वर्क दे रहा हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 9 पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड आरएसए ये पढ़ना है, पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेना है आने से पहले। और हम इसमें आरएसए एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक चैप्टर और है आपको, क्योंकि हम थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी मेथड्स को फ्यूचर में फर्दर जो हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे उनको समझने के लिए ज़रूरी है। तो आपको नंबर थ्योरी वाला एक चैप्टर है, मेरी बुक में हो सकता है चैप्टर नंबर कुछ और हो, आपकी बुक में एडिशन अलग होने की वजह से चैप्टर नंबर कुछ और हो, तो आप नंबर थ्योरी वाला जो चैप्टर है उसे पढ़ के आएंगे। ओके।